بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کے چرواہے کے پاس آیا اور اس نے وہاں سے ایک بکری اٹھا لی۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا حتیٰ کہ اس کو اس سے چھڑا لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہاں سرین کے بل بیٹھ گیا اور دم دونوں پاؤں کے درمیان داخل کر لی۔ پھر اس نے کہا، میں نے روزی کا قصد کیا جو اللہ نے مجھے عطا کی تھی اور میں نے اسے حاصل کر لیا تھا، مگر تو نے اسے مجھ سے چھڑا لیا۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم میں نے آج کے دن کی طرح کوئی بھیڑیا بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بھیڑیے نے کہا، اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع نخلستان مدینہ میں رہتا ہے، وہ تمہیں ماضی اور حال کے واقعات کے متعلق بتاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ شخص یہودی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے اس واقعے کے متعلق آپ کو بتایا اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں، قریب ہے کہ آدمی گھر سے نکلے، پھر وہ واپس آئے تو اس کے جوتے اور اس کا کوڑا اسے ان حالات کے متعلق بتائیں جو اس کے بعد اس کے اہل خانہ کے ساتھ پیش آئے ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5927۔ حضرت ابو العلا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برتن سے دن بھر باری باری تناول کرتے رہے، وہ اس طرح کہ 10 کھا جاتے اور 10 آ جاتے۔ ہم نے کہا، کہاں سے بڑھایا جا رہا تھا؟ انہوں نے فرمایا، تم کس چیز سے تعجب کرتے ہو؟ اس میں اضافہ تو اس طرف سے ہو رہا تھا، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5928۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے روز 315 صحابہ اکرام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ ننگے پاؤں ہیں تو انہیں سواری عطا فرما۔ اے اللہ، یہ ننگے بدن ہیں تو انہیں لباس عطا فرما۔ اے اللہ، یہ بھوک کا شکار ہیں تو انہیں شکم سیر فرما۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ آپ واپس آئے تو ان میں سے ہر آدمی کے پاس 1 یا 2 اونٹ تھے، ان کے پاس لباس بھی تھا اور وہ شکم سیر بھی تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5929۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دشمن کے خلاف مدد کی جائے گی، تم مال غنیمت حاصل کرو گے، تم بہت سے ملک فتح کرو گے۔ تم میں سے جو شخص یہ مذکورہ چیزیں پالے تو وہ اللہ سے ڈرے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5930۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ انہوں نے سفر جاری رکھا حتیٰ کہ پچھلا پہر ہو گیا۔ ایک گھڑ سوار آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں فلاں فلاں پہاڑ کے اوپر چڑھا ہوں اور میں نے اچانک حوازن قبیلے کو دیکھا ہے کہ وہ سب کے سب اپنے مویشیوں اور اپنے اموال کے ساتھ حنین کی طرف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھاٹی کی طرف جاؤ حتیٰ کہ تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے نماز پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر فرمایا، کیا تم نے اپنے گھڑ سوار کو محسوس کیا؟ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے محسوس نہیں کیا۔ نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اس گھاٹی کی طرف التفات فرماتے رہے حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارا گھڑ سوار آ گیا ہے۔ ہم بھی درختوں کے درمیان اس گھاٹی کی طرف دیکھنے لگے تو وہ اچانک آ گیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے عرض کیا، میں چلتا گیا حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس گھاٹی کے بلند ترین حصے پر تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں ان دونوں گھاٹیوں کے اطراف سے ہو آیا ہوں لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या रात के वक्त तुम अपने घोड़े से नीचे उतरे थे? उन्होंने अर्ज़ किया, नमाज पढ़ने या क़ज़ाए हाजत के अलावा मैं नहीं उतरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस रात के बाद कोई भी नेक अमल न करो तो तुम पर कोई मुआखिज़ा नहीं। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5932। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैं कुछ खजूरें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इनमें बरकत के लिए दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इकट्ठा किया, फिर मेरे लिए इनमें बरकत की दुआ फरमाई और फरमाया, इन्हें ले लो और इन्हें अपने तोशा दान में रख लो। जब भी तुम इनमें से कुछ लेना चाहो तो इसमें अपना हाथ डाल कर ले लेना और इन्हें मुकम्मल तौर पर बाहर ना निकालना। मैंने इनमें से इतने इतने वसक खजूर अल्लाह की राह में अता किए। हम खुद भी इसमें से खाते थे और खिलाते भी थे, और वो मेरी कमर से अलग नहीं होता था, हत्ता कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के रोज़ वो मुनक़ते होकर गिर पड़ा। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5933। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जब खैबर फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बकरी का हदिया पेश किया गया जिसमें जहर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ जितने यहूदी मौजूद हैं इन्हें मेरे पास जमा करो। चुनाचे वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, मैं तुमसे एक चीज़ के मुतालिक सवाल करने लगा हूँ, क्या तुम इसके मुतालिक मुझे सच सच बताओगे? उन्होंने कहा, जी हाँ अबुल कासिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारा बाप कौन थे? उन्होंने बताया, फलां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम झूठ बोलते हो, बल्कि तुम्हारा बाप तो फलां है। उन्होंने कहा, आपने सच फरमाया और अच्छा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे किसी चीज़ के मुतालिक दरियाफ्त करूं तो तुम मुझे सच सच बताओगे? उन्होंने कहा, जी हाँ अबुल कासिम, अगर हमने आपसे झूठ बोला तो आप समझ जाएंगे जिस तरह आपने हमारे बाप के बारे में हमारा झूठ जान लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जहन्नमी कौन है? उन्होंने कहा, कुछ मुद्दत के लिए हम इसमें जाएंगे, फिर हमारी जगह तुम वहाँ आ जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ही इसमें जलील होकर रहोगे, क्योंकि हम इसमें तुम्हारी जगह कभी भी दाखिल नहीं होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे एक चीज़ के बारे में सवाल करता हूँ, क्या तुम मुझे सच सच जवाब दोगे? उन्होंने कहा, हाँ अबुल कासिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने इस बकरी के गोश्त में जहर मिलाया है? उन्होंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस चीज़ ने तुम्हें इस पर आमादा किया? उन्होंने कहा, हमने इसलिए किया कि अगर आप झूठे हुए तो हमें आपसे आराम मिल जाएगा, और अगर आप सच्चे हुए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5935। हज़रत उमर बिन अख्तब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़जर की नमाज पढ़ाई और मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, हमें खिताब फरमाया हत्ता कि ज़ोहर का वक्त हो गया। फिर आप मिंबर से उतरे और नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और हमें खिताब फरमाया हत्ता कि नमाज असर का वक्त हो गया। फिर आप नीचे तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और खिताब फरमाया हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया। आपने क़यामत तक होने वाले वाक़यात के मुतालिक हमें बयान फरमाया। रावी बयान करते हैं, हम में से ज़्यादा आलिम वो है जो इस खुतबे को हम में से ज़्यादा याद रखने वाला है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5936। हज़रत मान बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं, मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने कहा, मैंने मसरूक से दरियाफ्त किया, जिस रात जिन्होंने कुरान सुना था इसकी खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने दी थी? उन्होंने बताया, मुझे तुम्हारे वालिद यानी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि उनके मुतालिक एक दरख्त ने इत्तला दी थी। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 5937। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मक्का और मदीना के दरमियान थे। हमने चांद देखने का एहतमाम किया। मेरी नज़र तेज़ थी, लिहाजा मैंने उसे देख लिया और मेरे सिवा किसी ने न कहा कि उसने उसे देखा है। मैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगा, क्या आप उसे देख नहीं रहे?
वो उसे नहीं देख पा रहे थे। रावी बयान करते हैं उमर रजी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे, मैं अनकरीब उसे देख लूँगा। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, फिर उन्होंने अहले बदर के मुताल्लिक हमें बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मौके पर कुफ़ार के कत्ल गाहों के मुताल्लिक एक रोज़ पहले ही बता रहे थे, कल इंशाअल्लाह यहाँ फ़ुला कत्ल होगा और कल इंशाअल्लाह यहाँ फ़ुला कत्ल होगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिस जगह की निशानदही फरमाई थी उसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था, वो वहीं वहीं कत्ल हुए थे। रावी बयान करते हैं उन सब को एक दूसरे पर कुएं में डाल दिया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए फ़ुला बिन फ़ुलां, ए फ़ुला बिन फ़ुलां, अल्लाह और उसके रसूल ने तुमसे जो वादा फरमाया था क्या तुमने उसे सच्चा पाया? क्योंकि अल्लाह ने मुझसे जो वादा फरमाया था मैंने तो उसे सच्चा पाया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप बेरूह जिस्मों से कैसे कलाम फरमा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनसे जो कह रहा हूँ वो इसे तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन वो मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं दे सकते। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5938। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से खाना तलब किया। आपने उसे एक वस्क जौ दिए। वो आदमी, उसकी बीवी और उनका मेहमान उससे खाते रहे, लेकिन जब उस शख्स ने वो नाप लिए तो वो ख़त्म हो गए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसे ना नापते तो तुम इससे खाते रहते और वो तुम्हारे लिए हमेशा रहता। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5941। हज़रत आसिम बिन कुलेब अपने वालिद से और वो अंसार में से एक आदमी से रवायत करते हैं, उन्होंने कहा, हम एक जनाजा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कब्र पर गोरकन को हदायत देते हुए सुना, इसके पाँव की जानिब से खुली करो, इसके सर की जानिब से खुली करो। जब आप वापस आए तो इस मैयत की औरत की तरफ से दावत का पैगाम देने वाला आपको मिला तो आपने दावत कबूल फरमाई और हम भी आपके साथ थे। खाना पेश किया गया तो आपने अपना हाथ बढ़ाया, फिर लोगों ने हाथ बढ़ाया, उन्होंने खाना खाया। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपने मुंह में लुकमा चबाते हुए फरमाया, मैं एक ऐसी बकरी का गोश्त पाता हूँ जो अपने मालिक की इजाज़त के बगैर हासिल की गई है। उस औरत ने अपने वजाहती पैगाम में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने नकी की तरफ, जो कि बकरियों की ख़रीदो फ़रोख्त का मरकज़ है, आदमी भेजा था ताकि वो मेरे लिए एक बकरी ख़रीद लाए, लेकिन वहाँ ना मिली तो मैंने अपने पड़ोसी की तरफ भेजा, उसने एक बकरी ख़रीदी हुई थी कि वो इसकी कीमत के एवज़ इसे मेरी तरफ भेज दे, लेकिन वो पड़ोसी ना मिला तो मैंने उस औरत की तरफ पैगाम भेजा तो उसने इसे मेरी तरफ भेज दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खाना कैदियों को खिला दो। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5942। हज़रत हिज़ाम बिन हिशाम अपने वालिद से, वो अपने दादा हबैश बिन खालिद जो कि उम्मे माबद के भाई हैं, से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से निकाला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ मुहाजिर की हैसियत से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर और अबू बकर के आज़ाद करदा गुलाम अम्मार बिन फ़हीरा थे और उनकी रहनुमाई करने वाले अब्दुल्ला अल-लैशी थे। वो उम्मे माबद के 2 खैमों के पास से गुजरे तो उन्होंने इससे गोश्त और खजूर के मुतल्लिक दरियाफ्त किया ताकि वो इससे ख़रीद ले, लेकिन उन्हें इसके यहाँ कोई चीज़ ना मिली, जबकि उनके पास ज़ादो राह नहीं था और वो कहत साली का शिकार हो चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे के एक कोने में एक बकरी देखी तो फरमाया, उम्मे माबद, ये बकरी कैसी है? उसने बताया कि ये लागरपन की वजह से रेवड़ के साथ नहीं जा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये दूध देती है? उसने अर्ज़ किया, ये इस लायक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मुझे इजाज़त देती हो कि मैं इसका दूध धो लूँ? उसने अर्ज़ किया, मेरे वालिदैन कुर्बान हों, अगर आप इसमें दूध देखते हैं तो ज़रूर धो लें। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तलब फरमाया, इसके थन को अपना दस्त मुबारक लगाया, अल्लाह ताला का नाम लिया, उम्मे माबद के लिए इस बकरी के बारे में दुआए खैर फरमाई, उसने पाँव खोल दिए, दूध छोड़ दिया और वो जिगाली करने लगी। आपने एक बर्तन मंगाया जो एक जमात को आसूदा कर सकता था, उसमें दूध धोया और इतना धोया कि उस पर झाग आ गया। फिर आपने उम्मे माबद को पिलाया हत्ता कि वो खूब सैराब हो गई। फिर अपने साथियों को पिलाया हत्ता कि वो सैराब हो गए। फिर आपने इन सब के आखिर पर खुद पिया। फिर आपने उस बर्तन में दूसरी मर्तबा दूध धोया हत्ता कि बर्तन भर गया। उस दूध को उम्मे माबद के पास छोड़ दिया। फिर आपने उससे इस्लाम पर बैत ली।
फिर सब उसके पास से कूच कर गए। मिशकातुल मुसाबी हदीस नंबर 5943। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उसैद बिन हुजैर और अबादा बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु अपने किसी मसला के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते रहे, हत्ता कि शदीद तारीक रात में रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वापसी के लिए रवाना हुए। हर एक के हाथ में छोटी सी लाठी थी। चुनाचे उन दोनों में से एक की लाठी ने रोशनी पैदा कर दी, हत्ता कि वो उसकी रोशनी में चलने लगे। लेकिन जब उन दोनों की राहें अलग अलग हुईं तो दूसरे के लिए उसकी लाठी ने रोशनी पैदा कर दी। दोनों में हर एक अपनी लाठी की रोशनी में चलने लगा, हत्ता कि वो अपने घर पहुंच गया। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5944। हजरत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जब ग़ज़वा अहद का वक्त आया तो रात के वक्त मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और कहा, मैं अपने मुताल्लिक़ समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम में से सबसे पहले मैं शहीद हूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के अलावा मैं अपने बाद तुझसे ज़्यादा अजीज़ शख्स कोई नहीं छोड़कर जा रहा। मेरे ज़िम्मे कुछ कर्ज है, उसे अदा करना और अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करना। सुबह हुई तो वो पहले शहीद थे। मैंने उन्हें एक दूसरे शख्स के साथ एक कब्र में दफन किया। मिशकातुल मसाबे हदीस नंबर 5945। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि असहाबे सुफ़ा मोहताज लोग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास 2 आदमियों का खाना हो तो वो तीसरे को साथ ले जाए। जिस शख्स के पास 4 अफराद का खाना हो तो वो 5वें को या 6ठे को साथ ले जाए। और अबू बकर 3 को साथ लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 को साथ लेकर गए। अबू बकर ने शाम का खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खाया, फिर वहीं ठहर गए हत्ता कि नमाज इशा पढ़ ली गई। फिर वापस तशरीफ़ ले आए और वहीं ठहर गए हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया। फिर जितना अल्लाह ने चाहा रात का हिस्सा गुजर गया तो वो वापस अपने घर चले गए। उनकी अहलिया ने उनसे कहा, आपको आपके मेहमानों के साथ आने से किसने रोका था? उन्होंने पूछा, क्या तुमने उन्हें खाना नहीं खिलाया? उन्होंने अर्ज़ किया, उन्होंने इनकार कर दिया हत्ता कि आप तशरीफ़ ले आएँ। वो नाराज़ हो गए और कहा, अल्लाह की कसम मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा। औरत ने भी कसम खा ली कि वो इसे नहीं खाएगी और मेहमानों ने भी कसम उठा ली कि वो भी खाना नहीं खाएंगे। अबू बकर रज़ी अल्लाह उन्होंने फरमाया, ये हलफ उठाना शैतान की तरफ से था। उन्होंने खाना मंगवाया, खुद खाया और उनके साथ मेहमानों ने भी खाया। वो लुकमा उठाते तो उसके नीचे से और ज़्यादा हो जाता था। उन्होंने अपनी अहलिया से फरमाया, बनु फराज की बहन, ये क्या मामला है? उन्होंने कहा, मेरी आंखों की ठंडक की कसम, ये अब पहले से भी 3 गुना ज़्यादा है। चुनाचे उन्होंने खाया और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी भेजा। बयान किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से तनावुल फरमाया। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5946। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, जब नजाशी फौत हुए तो हम बाहम गुफ्तगू करते थे कि उनकी कब्र पर मुसलसल रोशनी नज़र आ रही है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5947। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, जब सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का इरादा किया तो उन्होंने कहा, मालूम नहीं कि जिस तरह हम अपने फौत होने वाले दीगर अफराद के बवक्त गुस्ल कपड़े उतार देते थे, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कपड़े उतार दें या हम कपड़ों समेत गुस्ल दें। जब उन्होंने इख्तलाफ किया तो अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी, हत्ता कि उनमें से हर शख्स की थोड़ी उसके सीने के साथ लगने लगी। फिर घर के एक कोने से किसी ने उनसे बात की, मगर सहाबा को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं कि वो कौन था। उसने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों समेत गुस्ल दो। वो खड़े हुए और आपको इस तरह गुस्ल दिया कि आपकी कमीज आप पर थी, वो कमीज के ऊपर पानी गिराते थे और आपकी कमीज के साथ मिलते थे। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5948।